everyone, welcome to the sociology class. I am Bharvi, your sociology educator, and today we are going to start a new series of important sociological thinker. As you know, many exams are approaching, be it JNU or NET or GATE, so these lectures will help you get an overview of all the sociological thinker in lesser time. But don't think that you don't have to read after these lectures. I will attach some reading material in description, so don't forget to check that out because as a sociologist it is very important that you read a lot. Okay, so let's get started. So before starting the lecture, one thing that I would like to tell is Auguste Comte is not mentioned in any of the syllabus, be it UGC NET, GATE or JNU, but still he becomes a very important sociological thinker because इन्हीं से सारे sociology की starting हुई थी. So इसलिए इनके थोड़े बहुत जो concepts हैं वो समझना बहुत important है because एक दो questions इनकी books से इनके concepts से आ जाते हैं. So we cannot leave that. Okay. So first of all we are going to see कि वो 1798 में उनका birth हुआ था and 1857 में he died. It is very important to remember his date of birth because sometimes it is asked in the question and whatever I am ticking is important. Okay. So he is a French sociologist. ये एक French sociologist है and he is born in France and he is Catholic. This is also important. Sometimes these type of question also can be asked जो कि uncommon है. So in 1814 he was admitted to one of the most prestigious educational institution of France. एक बहुत ही prestigious यानी बहुत ही जाने माने अच्छे इंस्टीट्यूशन में इनका एडमिशन होता है जिसका नाम है इकोल पॉलीटेक्निक. सो कहाँ एडमिशन हुआ था 1814 में, ये भी याद करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. हियर मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स वर स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. तो ये याद रखिएगा कि ऑगस्ट कॉम्ट जहाँ पे थे वहां पर मैथ्स और फिजिक्स के प्रोफेसर ज्यादा थे, स्कॉलर्स ज्यादा थे. दे हैड लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडी ऑफ सोसाइटी. उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था सोसाइटी को पढ़ने में. But young Auguste Comte, being sensitive to the kind of social disorder that France was undergoing due to revolution, was keenly interested in human affairs and the study of society. तो क्योंकि उस टाइम फ्रांस में काफ़ी सोशल डिसऑर्डर चल रहा था. सोशल डिसऑर्डर मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे सोसाइटी काफ़ी डिस्टर्ब थी. तो हमें पता है कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे और ऑगस्ट कॉम्ट ये सब देख रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे थे ये समझने में कि सोसाइटी कैसे काम करता है, क्या है. ह्यूमन अफेयर्स और स्टडी ऑफ सोसाइटी में वो इंटरेस्टेड थे. ह्यूमन अफेयर्स मीन्स हाउ ह्यूमन डील विद many types of things that happen in society. Okay, interrelation. So Comte was involved in a student protest at Ecole Polytechnique because of which he was expelled. तो इन्होंने एक प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था. ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, सो मैंने ये इसमें इसीलिए अटैच कर दिया है. तो कौन जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अपने यूनिवर्सिटी में, अपने इंस्टीट्यूशन में, एंड उसकी वजह से वो एक्सपेल्ड कर दिए गए थे. सो एक्सपेल्ड मीन्स होता है उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन. At the Ecole Polytechnique, he came under the influence of such traditionalist social philosophers L.G. Bonnard, Joseph de Maistre. तो ऐसे लोगों से ये इन्फ्लुएंस थे. ये दो लोग हैं जिन्होंने इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था और इन्हें हम ट्रेडिशनलिस्ट सोशल फिलोसफर्स बोलते हैं. Was from them that he borrowed the notion of ordering governing the evolution of human society. इन्हीं से इन्होंने ये जो सोसाइटी कैसे चेंज होती है टाइम टू टाइम, कैसे इवॉल्व होती है ह्यूमन बॉडी की तरह, ये वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने इन्हीं से लिया था. ओके. सो इन 1824 he became a secretary to Saint Simon. 1824 में वो सेंट साइमन के सेक्रेटरी बनते हैं एंड एरिस्टोक्रेट बाय बर्थ एंड यूटोपियन सोशलिस्ट. तो याद रखना कि सेंट साइमन जो है वो एक एरिस्टोक्रेट है बाय बर्थ बट एंड यूटोपियन सोशलिस्ट इन आइडियाज. वो आइडियाज में क्या है, यूटोपियन सोशलिस्ट, जिसको लगता है कि फ्यूचर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में वो जीते हैं जिसमें सोसाइटी काफ़ी परफेक्ट हो फ्यूचर में. ओके. जो इस तरह का बिलीव करते हैं, इस तरह की आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो यूटोपियन सोशलिस्ट होते हैं. एंड एरिस्टोक्रेट मीन्स होता है कि जो काफ़ी नोबल फैमिली से हो, काफ़ी अच्छी फैमिली से हो. ठीक है. ही बिकेम अ क्लोज फ्रेंड एंड डिस्पाइल ऑफ सेंट साइमन. डिस्पाइल मीन्स होता है फॉलोअर्स. तो ये एक अच्छे फ्रेंड थे और फॉलोअर थे सेंट साइमन के. कौन? ऑगस्ट कॉम्ट. ठीक है. हु स्टिमुलेटेड हिज इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स. तो इनका इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट आया इनकी वजह से. It was at this period that Auguste Comte
worked out the general conception of a science of society which he named sociology. और इसी टाइम पे इन्होंने एक ऐसी साइंस की कह सकते हैं खोज की जो सोसाइटी को पढ़े, और उसका नाम इन्होंने रख दिया सोशियोलॉजी. So August Comte's ambition was the political reorganization of human society. August Comte का ambition था, वो चाहते थे कि political reorganization करें human society का. Reorganization मतलब कि change करना, जैसा है उसको और ठीक करना. According to him, such a reorganization will have to depend upon spiritual and moral unification of society. तो ये याद रखना दो चीजें कि ऑगस्ट कॉम्ट चाहते थे कि पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन हो सोसाइटी का, और क्यों हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्पिरिचुअल और मॉरल यूनिफिकेशन पे, है ना. तो कैसे होगा स्पिरिचुअल और मॉरल यूनिफिकेशन? इसका मतलब है कि हमें पता है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो मोनार्की का कॉन्सेप्ट चला गया था, तो उस वजह से जो भी केओस सोसाइटी में हो गया था उसको इन्होंने बोला कि चेंज करने के लिए स्पिरिचुअल और मॉरल यूनिफिकेशन की बहुत जरूरत है. स्पिरिचुअल मीन्स क्या? जैसे रिलीजन होता है जो हमारी अंदर से हमें हैप्पी फील कराता है. मॉरल यूनिफिकेशन मीन्स जो राइट और रॉन्ग हम सही कर सकते हैं, हमें थोड़ी समझ हो कि ये सही है ये गलत है. तो इस तरह की चीजें इन्होंने बोली. फिर सेंट साइमन के साथ इन्होंने बहुत सारे आइडियाज भी डेवलप किए. हाउएवर देयर पार्टनरशिप वाज शॉर्ट लिव्ड एंड दे एंडेड अप क्वारलिंग विद ईच अदर. सो लेटर ऑगस्ट कॉम्ट पब्लिश सम ऑफ हिज लेक्चर नोट्स. तो ये कोर्स दे फिलॉसफी पॉजिटिव, ये फ्रेंच में लिखा है. इसका ट्रांसलेशन है कोर्स, शायद कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी, है ना. इन दिस वर्क ही रोट अबाउट लॉ ऑफ 3 स्टेजेस. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लॉ ऑफ स्टेजेस किस बुक में दिया है? इस बुक में दिया है. ओके, एंड ये इनके लेक्चर्स थे, तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है और काफी अनकॉमन है. ठीक है, तो ये while working on this book he discovered the principle of cerebral hygiene. This meant that in order to keep his mind uncontaminated he stopped reading other people's work. So ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि इन्होंने सेरेब्रल हाइजीन का प्रिंसिपल ला के दिया था जिसमें कि आप लोगों का वर्क नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. Between 1851-1854 he wrote a treatise entitled System of Positive Politics, और in his book he applied the findings of theoretical sociology towards solving the social problems. तो इन्होंने फिर ये बुक लिखी और इसमें इन्होंने ये बताया कि कैसे सोशोलॉजी के थ्रू हम लोग सोसाइटी की सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. So this is a very important part that I found in IGNOU. It was during this period that he met Clotilde de Bourgh, who became a close friend. Her death in 1846, a year after they met, affected Auguste Comte to such a great degree that his ideas turned towards mysticism and religion. तो रिलीजन में इन्होंने जब बात करना स्टार्ट किया तो उसका रीजन ये था कि इनकी फ्रेंड थी और उनके मिलने के 1 साल बाद शी एक्सपायर्ड, एंड इसकी वजह से इनका जो इंटरेस्ट था वो रिलीजन की तरफ बढ़ा. So his ideas which he put down in systems of positive politics shifted partly from positivism to construct a religion of humanity. तो पहले तो ये positivism की बात करते थे. So positivism का मतलब होता है साइंस को सपोर्ट करना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशोलॉजी वी कैन से. तो उसके बाद इन्होंने अपना सारा फोकस जो था वो रिलीजन पे शिफ्ट कर दिया और ये इसका रीजन था. So it was very interesting when I was making this PDF. I was really liking it because ये सब मुझे भी नहीं पता था पहले. So let me know what you think about this in the comment section. So now positivism से जब ये religion पे आ गए, इसकी वजह से he lost many of his files and intellectual friends such as J.S. Mill of England. We all know J.S. Mill. Okay, he took his role as the prophet of social regeneration so seriously that he even sent a plan to Russian king suggesting ideas. तो ये इतने serious थे सोशल रीजनरेशन यानी सोसाइटी को फिर से चेंज करके और एकदम बदलने में कि इन्होंने रशियन किंग को भी एक प्लान सेंड कर दिया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू नो दैट ये इतना ज़्यादा अपने एम्बिशन को लेके सीरियस थे. एंड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट J.S. मिल. सो J.S. मिल का पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल. ओके, ओके, सो इनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल एंड ही इज फेमस फॉर मिल्स मेथड दैट ही हैज गिवन. मिल्स मेथड्स.
जिसमें इन्होंने 5 ऐसे प्रिंसिपल दिए जो कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम देखते हैं। ठीक है, तो वो ये जो इंडक्टिव रीजनिंग के प्रिंसिपल्स हैं 5, वो इन्होंने ही दिए हैं। इतना बेसिक्स यू शुड एटलीस्ट नो इफ यू कम अक्रॉस एनी न्यू sociological thinker or any new name. First of all, you should just Google it and read it from Wikipedia. At least you should have an idea कि ये कौन है, इन्होंने क्या किया है, ताकि एग्जाम में if the question comes, you can do it. If you have little bit knowledge, you can eliminate and do the right option. So please make sure that you read a lot. तो ऑगस्ट कॉम्ट का जो काम था वो फ्रांस में नहीं रिकॉग्नाइज किया गया था ज़्यादा जब तक वो थे। ये तो उनके डेथ के बाद हुआ 1857 में। ही बिकेम फर्स्ट इन इंग्लैंड एंड देन फ्रांस एंड जर्मनी। इंग्लैंड में ही सबसे पहले इनको इनके थ्योरीज को वैल्यू दी गई एंड ये उनके डेथ के बाद हुआ था। ठीक है, द डायरेक्ट इम्प्रिंट ऑफ हिज थिंकिंग कैन बी सीन इन द फ्रेंच साइंटिफिक मूवमेंट ऑफ द लास्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। जो भी लास्ट हाफ 19th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशंस या मूवमेंट्स जो भी हुए, उसमें हमें ऑगस्ट कॉम्ट की थिंकिंग काफी ज्यादा देखने को मिली। ओके, now we will see his social environment. During the early 19th century, the intellectual climate in France was favorable to the development of new critical and rational ideas. हमें पता है 19th century में फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो रही थी, लोग इंटेलेक्चुअली ग्रो कर रहे थे, रैशनल थिंकिंग आ रही थी, लोग रीजन को ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे ना कि पुराने रिलीजन और वैसे थॉट्स को। तो अचीवमेंट इन नेचुरल साइंसेज एंड मैथमेटिक्स वर अ मैटर ऑफ प्राइड एंड अ न्यू कॉन्फिडेंस हैड डेवलप्ड इन यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स। नए नए तरह के मेथड्स आ रहे थे, साइंसेस ग्रो हो रहे थे, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा उस टाइम प्राइड में था, तो ये सब हो रहा था। August Comte, being a product of his time, he was also affected by social destruction brought by French Revolution. तो ऑगस्ट कॉम्ट जो थे वो अच्छे से अवेयर थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या क्या सोशल डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम सोसाइटी में फैल चुकी हैं। ही लिव्ड इन आफ्टरमैथ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तक थे सोसाइटी में। ही वॉज कंटिन्यूली डिस्ट्रेस्ड एंड डिस्टर्ब्ड बाय द डिसऑर्डर ऑफ हिज टाइम। उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था दैट ही वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड। जैसे इस टाइम कोरोना के टाइम पे भी ऑल वर काइंड ऑफ डिप्रेस्ड समहाउ कि हर जगह डेथ्स हो रहे हैं, इतनी नेगेटिव न्यूज आ रहा है ना। सो ये ही इनके साथ भी हो रहा था एंड ही वाज वेरी वेरी डिप्रेस्ड। और मटेरियल एंड कल्चरल पॉवर्टी ऑफ द पीपल, ये जो लोग जो बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे उस टाइम पे, ये इनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। हिज फंडामेंटल एंड लाइफ लॉन्ग प्री ऑक्यूपेशन वॉज हाउ टू रिप्लेस डिसऑर्डर बाई ऑर्डर। तो यही इनका जो पूरा काम है वो इसी के आसपास है कि कैसे डिसऑर्डर को ऑर्डर से रिप्लेस किया जाए और रिकंस्ट्रक्शन किया जाए सोसाइटी का, पूरी सोसाइटी को फिर से चेंज करके बनाया जाए। इस पे इनका सारा फोकस था। He saw the French Revolution as a crucial turning point in the history of human affairs. The ancient regime was gone. तो इनका जो था ये कहना था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा पॉइंट था जहां से हिस्ट्री जो थी ह्यूमन अफेयर्स की, यानी लोग कैसे काम करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, द एंशिएंट रिजीम वाज गॉन। पुराना जो पावर्स था, जो रूल था, वो जा चुका था। सोसाइटी वाज अनेबल टू कोप विद द न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंटिफिक नॉलेज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे थे और सोसाइटी उस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पा रहा था। ओके, a new order of social institution in keeping with the whole changes taking place not yet taken a firm hold. Amidst this confused state, people too were in state of flux, their thoughts were disoriented. तो जो लोग भी उस टाइम पे स्टेट में थे, उस टाइम जो रूल कर रहे थे, वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं केओटिक टाइम था वो। ओके, देयर वर ग्रेट डिफरेंसेस बिटवीन बिलीफ एंड नॉलेज। सो जब अचानक से सोसाइटी चेंज हो गया तो क्या हुआ, लोगों के बिलीफ और नॉलेज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। जो वो पहले मानते थे, जो उनका नॉलेज था, वो अचानक चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक कोविड नहीं था, है ना, तो हम एक अलग ही लाइफस्टाइल में थे, हम सबसे मिलते थे, हम बाहर जाते थे, हम एकदम केयर फ्री थे। अचानक जब कोविड आया, हम लोग बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, ऐसे लॉकडाउन हो गया था, लोग फिर भी घर से बाहर निकल रहे थे, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, है ना। तो आपको अगर इसको अच्छे से समझना है तो प्लीज टेक द एग्जांपल ऑफ दिस कोविड टाइम, क्योंकि ये भी वैसे ही टाइम है। एंड द कल्चरल वैल्यूज एंड गोल्स ऑफ पीपल लैक कोहेरेंस, कॉन्फिडेंस, व्हाट वाइल ऑब्जेक्टिव्स। तो काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, कुछ लोगों को पता नहीं था क्या करना है, ना कॉन्फिडेंस था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। न्यू वंस वर येट टू टेक रूट,
द पीपल वर देयरफॉर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. जो न्यू जनरेशन थी उन्हें भी नहीं पता था कि क्या करना है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था. अ न्यू पॉलिसी और अ न्यू ऑर्डर ऑफ फीलिंग, थॉट एंड एक्शन वाज नेसेसरी फॉर द न्यू कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी. और ये बहुत जरूरत था कि हमें एक नई पॉलिसी ला के दी जाए, एक नई पॉलिसी होनी चाहिए सोसाइटी में, जिससे कि ये जो भी प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी में, कंफ्यूजन था थॉट एक्शन का, इसको चेंज किया जाए न्यू पॉलिसी के थ्रू. ओके, so we have already discussed a little bit about Saint Simon. He was a utopian socialist. Please remember that. In a joint publication इन्होंने साथ में एक पब्लिश किया था जिसका नाम है प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी. वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट साइमन एंड ऑगस्ट कूंत रोट अबाउट द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस. इसी में हम लोगों को लॉ ऑफ 3 स्टेजेस देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट यू शुड नो व्हाट आर द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस. इसीलिए हम लोग ऑगस्ट कूंत को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज ही हैज गिवन अस द 3 लॉ दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर sociology, through which each branch of knowledge must pass. They said that the object of social physics, the positive science, पहले इन्होंने sociology को social physics बुलाया था, and then they changed it and called it sociology. Okay, तो these laws are as important to the science of society as the laws of gravity. जैसे साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सोशल साइंस में हमारा ये लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है अभी हम आगे देखेंगे. द इंटेलेक्चुअल अलायंस बिटवीन सेंट साइमन एंड ऑगस्ट कूंत डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. ये हम लोगों ने अभी कर लिया कि इनके बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था एंड देयर फ्रेंडशिप डिड नॉट गो फर्दर. सो ओके, नाउ according to August Comte, sociology is the abstract theoretical science of social phenomena. Very important line, you should remember it. He had initially called it social physics. ये हम लोगों ने अभी पढ़ा. इनको पहले social physics बुलाया था इन्होंने sociology को. Later he reluctantly changed this name because he found that Belgian scientist Adolf Quetelet, ये एक name है, I don't know how to pronounce it. If I'm wrong, please let me know. तो इन्होंने इसको यूज कर लिया था पहले ही सोशल फिजिक्स को, तो इनको चेंज करना पड़ा. ठीक है. एंड द स्टडी ऑफ सोसाइटी ऑन हाईली जनरलाइज्ड और एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ये इनका सोशियोलॉजी का एक बेसिक मीनिंग इन्होंने हमें बताया था. ठीक है. So now guys, this is very important part to study because we are going to see what are the central ideas that August Comte has talked about. तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चंस अक्सर यहीं से बन जाते हैं. सो वन बाय वन वी विल सी. फर्स्ट इज रीऑर्गेनाइज सोसाइटी ऑन न्यू लाइन्स. For him, the discovery of social laws which explain these principles of change in society were very important. तो हमें पता है कितना ज़्यादा ऑगस्ट कॉम्ट ने फोकस किया था सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करने पे. He wanted to develop naturalistic science of society. So naturalistic का मतलब होता है साइंटिफिक. तो वो एक साइंटिफिक साइंस बनाना चाहते थे सोसाइटी की. This science would be able to both explain the past development of mankind as well as future. So ये जो है एक ऐसा साइंस बनाना चाह रहे थे जो हमें पास्ट का जो भी डेवलपमेंट है उसकी भी नॉलेज दे और फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर पाए. सो एज अ सोशोलॉजिस्ट यू नो कि अगर आप सोसाइटी को अच्छे से स्टडी करो तो आप कुछ तो थ्योरी बिल्डअप कर सकते हो दैट ऐसा ऐसा फ्यूचर में हो सकता है. तो ये इस तरीके की साइंस को बनाना चाह रहे थे. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Scientific manner as the word of nature. According to him, the society of human beings must be studied in the same scientific manner as the word of nature. इनका कहना था कि जिस तरह से हम बाकी साइंसेस को पढ़ते हैं उसी तरीके से हमें सोसाइटी को भी पढ़ना पड़ेगा. हमें कुछ रूल्स कुछ लॉज बनाने होंगे तभी हम उसको नेचुरल साइंसेस की तरह पढ़ पाएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ऑगस्ट कॉम्ट जो थे वो नेचुरल साइंस जैसा बनाना चाहते थे सोशल साइंस को भी. एंड ही वॉज अ पॉजिटिविस्ट. If you have not watched my short video on positivism, please do so. I will attach it here, and उससे काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि positivism क्या है and August Comte उससे कैसे related है. The progress in natural sciences in establishing the laws of nature, such as Newton's law of gravity, Copernicus' discovery that it is the sun which is fixed and Earth, other planets which revolve around it, and so on, led him to believe that even society we can discover social laws. इनका कहना था कि जिस तरीके से साइंस में न्यूटन ने दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी, कॉपरनिकस ने डिस्कवर किया है ना, इस तरीके से सोसाइटी में भी हम सोशल लॉज को डिस्कवर कर सकते हैं और बना सकते हैं, ऐसा इनका कहना था. सो वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज सोशल लॉज.
क्वेश्चन आ जाता है कि किसने सपोर्ट किया था सोशल लॉस को, द आंसर वुड बी ऑगस्ट कॉम्ट. ओके. न्यू साइंस ऑफ सोसाइटी. इनके हिसाब से इट मस्ट रिलाई ऑन रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द अथॉरिटी ऑफ ट्रेडिशन. ऑगस्ट कॉम्ट का कहना था कि जो सोसाइटी है उसकी जो साइंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग पे और ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि हमारे इस क्या कहते हैं ट्रेडिशन पे कि जो चला आ रहा है वैसे ही पढ़ना है. ऑगस्ट कॉम्ट साइंस ऑफ सोसाइटी दैट इज सोशियोलॉजी वाज टू बी पैटर्न आफ्टर द नेचुरल साइंसेस. इनका कहना था कि नेचुरल साइंस के अकॉर्डिंग ही सोशियोलॉजी होगी. It was apply the methods of inquiry, use natural sciences such as observation, experimentation and comparison. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्होंने इन तीनों की बात बोली थी, इसे आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, OEC. इन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हम साइंस में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और कंपैरिजन करते हैं, सेम वैसे ही हमें सोशल साइंस में भी करना होगा. ओके. सो क्वेश्चन कैन कम कि वो 3 मेथड कौन से हैं नेचुरल साइंसेस के जो ऑगस्ट कॉम्ट ने बोला था कि सोशल साइंस में या सोशियोलॉजी पर्टिकुलर में भी होने चाहिए. सो द आंसर विल बी OEC, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपैरिजन. ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने कई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखे हैं, सो प्लीज डोंट टेक देम लाइटली. हिस्टोरिकल मेथड. हिस्टोरिकल मेथड कंपेयर सोसाइटी थ्रू द टाइम इन विच दे हैव इवॉल्व्ड. तो इन्होंने हिस्टोरिकल मेथड हमें दिया था. दिस मेथड is at the core of sociological inquiry since historical evolution is the crux of sociology. Historical method का मतलब है कि हम एक पॉइंट से देखना स्टार्ट करते हैं और फिर एक लंबे समय तक उसे पढ़ते हैं, जो भी पहले चीजें हुई हैं उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है. ओके. सो ये होता है हिस्टोरिकल मेथड और ऑगस्ट कॉम्ट ने इसके बारे में काफी बात की थी. ओके. सो नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, और इसे हम लोग द लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस भी कहते हैं. तो प्लीज रिमेंबर दैट. He holds that just as each individual develops from the stage of devout believer in childhood to a critical metaphysician, one who questions the abstract notion of existence in adolescence, to a natural philosopher in adulthood, so also the human beings and their system of thought have evolved in 3 major stages. Very important. इनका कहना था कि जिस तरीके से एक इंसान अपने बचपन में उसे कुछ भी नहीं पता होता है, नो रीजनिंग एट ऑल, जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं हम कुछ रीजन नहीं कर पाते हैं, हम धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख रहे होते हैं. बट जब हम बड़े हो जाते हैं देन वी डेवलप आवर क्या कहते हैं रैशनल थिंकिंग एंड लॉजिक, है ना. इसी तरीके से हमारा सोसाइटी भी इवॉल्व होता है. तो इन्होंने 3 स्टेजेस की बात की थी. पहला है थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा मेटाफिजिकल स्टेज, तीसरा है पॉजिटिव स्टेज. सो इसको ऐसे ही ऑर्डर में याद रखना है. क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि मेटाफिजिकल पहले आया है स्टेज में या फिर पॉजिटिव, तो यू शुड रिमेंबर दैट. इसको ऐसे याद रखो, TMP. ओके. TMP मीन्स थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, देन पॉजिटिव. अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं दैट व्हाट इट इज अबाउट. नाउ फर्स्ट he talks about theological stage. Human beings attempts to discover the first and final causes, the origin and purpose of all effects. Human mind at this level suppose that all phenomena are produced by the immediate action of supernatural beings. ये supernatural beings word जो है ना, ये आपको बहुत अच्छे से इसमें याद कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में हमें पता चल रहा है कि ह्यूमन बींग्स पहले क्या करते थे, जो भी उनकी लाइफ में हो रहा होता था दे यूज टू थिंक दैट कोई सुपर नेचुरल पावर है, जैसे कुछ है जो ये करवा रहा है ना. उनको इतना नॉलेज नहीं था, ना इतना रैशनल थिंकिंग थी. सो सुपर नेचुरल बीइंग इज अ कीवर्ड हियर दैट यू शुड रिमेंबर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सम ट्राइब्स बिलीव दैट डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, कॉलरा वर एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स एंगर. तो इनको लगता था कि अगर आपको स्मॉल पॉक्स हो गया है, कॉलरा हो गया है, तो कहीं ना कहीं भगवान आपसे नाराज हैं, गुस्सा है ना. तो इस तरह की चीजें हम थियोलॉजिकल स्टेज में देखते हैं, यानी फर्स्ट स्टेज. ओके. नाउ in the metaphysical stage, the mind explains phenomena by invoking abstract entities like nature. These abstract entities are personified abstraction. Human beings pursue meaning and explanation of word in terms of essence, ideals and forms. In short, in conception of some ultimate reality such as God. तो मेटाफिजिकल स्टेज में क्या होता है कि हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को समझने लगते हैं, जैसे नेचर, है ना. ये गॉड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और हम कुछ कुछ अपना क्या कहते हैं आइडियाज को डेवलप कर चुके हैं इस स्टेज में, और हम नेचर को समझने लगते हैं कि जो भी हो रहा है वो नेचर की वजह से हो रहा है ना. तो इस तरह का हमें सेकेंड
स्टेज में देखने को मिलता है. Now comes the third stage, that is in the positive stage. Human beings cease to look for original sources or final causes because these can be neither checked against facts nor utilized to serve our needs. Human mind at this stage applies itself to the study of their laws, their invariable relations to succession and resemblance. Human beings seek to establish laws which link the fact and which govern social life. So इस स्टेज में क्या होता है कि हम काफ़ी रैशनल हो चुके होते हैं, हम अपने लॉज बनाने लगते हैं और हम पहले की इससे काफ़ी चेंज हो चुके होते हैं, है ना. हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो इस स्टेज में चीज़ों को समझने लगता है, अप्लाई करने लगता है और हम काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं. सो अगर हम ह्यूमन रेस के टर्म्स में इसे देखें तो इन थियोलॉजिकल स्टेज ऑफ ह्यूमन थॉट इन रिलेशन टू पॉलिटिकल डोमिनेंस वाज डोमिनेटेड बाय प्रीस्ट एंड रूल. तो फर्स्ट स्टेज में हम ये देखते हैं कि प्रीस्ट से और मिलिट्री मैन रूल कर रहे होते हैं, ठीक है. सेकेंड में हम देखते हैं कि चर्च मैन एंड लॉयर्स, ओके. एंड थर्ड में हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक गाइड्स हो जाती हैं. तो इस तरीके से इसे आप याद कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, जस्ट रीड इट. So now we are going to see the last topic of the day, that is static and dynamic sociology. So the idea of this division is borrowed from biology. तो ऑगस्ट कोंट ने ये आइडिया बायोलॉजी से लिया था. और याद रखना कि इन्होंने हायरार्की ऑफ साइंसेस भी हमें बताया था. हायरार्की ऑफ साइंसेस को याद रखने के लिए एक बहुत इजी तरीका है, MAPCBS, ओके. तो इसका फुल फॉर्म है, सबसे पहले हमारा आ जाता है मैथ्स, देन हमारा आ जाता है एस्ट्रोनॉमी, देन कम्स फिजिक्स, एंड देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी एंड देन सोशियोलॉजी. तो इन्होंने ये हायरार्की हमको दिया था और इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे इसमें हम आगे जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज, ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस और इधर डिक्रीजेस, ठीक है. तो ये आप याद रखिएगा. वैसे मुझे एक इसमें डायग्राम अटैच कर देना चाहिए था, बट यू विल इजीली फाइंड इट इन गूगल. इट्स वेरी इजी, जस्ट गो एंड सर्च हायरार्की ऑफ साइंसेस बाय ऑगस्ट कोंट, ठीक है. तो इन्होंने ऐसा बोला था. और बायोलॉजी इज द साइंस विच प्रीसीड सोशियोलॉजी. सो यू कैन सी बायो सोशियोलॉजी के पहले क्या आता है, बायोलॉजी. इसीलिए इन्होंने ये जो स्टैटिक एंड डायनेमिक सोशियोलॉजी है, इन्होंने ये बायोलॉजी से लिया था, ठीक है. और इन्होंने ये भी बोला था कि साइंस में जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स मैच होते हैं वो बायोलॉजी से ही होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि सोशियोलॉजी का जो थोड़ा बहुत है फीचर्स वो किससे मैच करता है, कौन से सब्जेक्ट से. ये सारे ऑप्शंस आपको दिए होंगे एंड यू हैव टू चूज बायोलॉजी, ओके. तो स्टैटिक एंड डायनेमिक सोशियोलॉजी क्या है हम देख लेते हैं. The static sociology studies the condition of existence of society, while the dynamic sociology studies the continuous movement or laws of the succession of individual stages in society. तो बहुत easy है ये, क्योंकि static का means क्या होता है, रुका हुआ, stable, ओके, जो रुका होता है. डायनेमिक मीन्स क्या होता है, चेंज. तो अगर आप इसका मीनिंग भी जानते हैं वर्ड्स का तो आप इजिली समझ लेंगे. पहला जो है हमारा वो सोशल ऑर्डर के बारे में बात करता है. क्या क्या ऐसा होना चाहिए जिससे सोशल ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन रहे, कंडीशंस क्या होनी चाहिए. और डायनेमिक सोशियोलॉजी जो है वो हमारा सोशल चेंज की बात करता है, क्योंकि डायनेमिक है तो चेंज की यहाँ पे बात होती है, ओके. या फिर कह सकते हैं प्रोग्रेस, किस तरीके से सोसाइटी हमारा चेंज होता रहता है, प्रोग्रेस होता रहता है, ओके. यहाँ पे मैंने इसे इसी लैंग्वेज में सीधे सीधे लिख दिया है, सो प्लीज रीड इट एंड ओके. So this is it guys, it's done for today. I hope you like this lecture. If you have anything to give me as a feedback, please comment and don't forget to join my Telegram channel. And इस playlist में सिर्फ और सिर्फ हम अलग अलग तरीके के sociological thinkers को discuss करेंगे. So please comment and let me know if you like my lectures or not, because it motivates me to come up with new lectures. Thank you very much guys, keep learning.